So Jan Kumar Sanu, welcome to Times of India. Thank you for having me. And how excited are you to enter the Bigg Boss house? Yeah, so as I was saying, I'm very excited about being on the show because I've been a very big fan of Bigg Boss right from the first season, and I've been following it very, very closely. I've watched all the seasons with my mom, and I never thought that I'd get to be a part of this show as a contestant because, again, it's one of those things just come your way. So this was something I was very, very excited to when I got the offer, I was very excited about it, and I'm really, really happy to be a part of such a big show. And I'm just eagerly waiting to see how it unfolds. This time, Bigg Boss is going to be very different because 6 महीने से हम खुद हर कोई बाहर Bigg Boss ही खेल रहा है because half of the time we all were in home quarantine, lockdown में हम सब थे. So, what made you to take up the decision of getting locked inside the house? पहले ही हमने 6 महीने से बाहर की जिंदगी से we have been aloof. And now you're taking up another challenge and going inside and get to be, locked. So what made you to take up this decision? I think I didn't think about it in this way. I'll be very honest. I didn't think about it in this way कि अभी वापस लॉकडाउन में ही जाना है, एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में. जी. Because the show in itself is so glamorous, it's so huge that it sort of nullifies the all of these thoughts कि हम already lockdown में रहे हैं इतने टाइम से या ऐसा कुछ. Because Bigg Boss is such a big platform that हालांकि हम लॉकडाउन में रहेंगे बट ये बहुत ही अलग किस्म का लॉकडाउन होगा. बिकॉज अभी का जो लॉकडाउन था हमारा, उसमें हमारे पास वी हैड आवर फोन्स, हमारा लाइक इंटरनेट, टीवी, लैपटॉप, एंटरटेनमेंट, फैमिली, सब कुछ हमारे पास था. इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल, नॉट आई वुडंट से कंफर्टेबल, बट इट वाज मच मोर टॉलरेबल. बट टू गो इनटू अ बिग बॉस हाउस where you're locked up with completely 14 completely strange people जिनके साथ आपने कभी interact नहीं किया है लाइफ में पहले कभी, and without the luxuries of any kind of internet or device or any kind of connectivity with the outside world, I think that would be a very different lockdown. And for a person, I think anybody in this world to be inside the Bigg Boss house would be like a dream come true. Because कभी ना किसी ने सोचा जरूर है कि काश मैं बिग बॉस में गया होता या काश मैं बिग बॉस में जा सकूं. Jan, because you're coming from such a well-known family and affluent family, is there some kind of pressure कि बिग बॉस के घर में इतने झगड़े होते हैं, controversies होती है, तो मैं उससे अपने आप को कैसे बचा के रखूंगा और अपनी dignity, how will I maintain that? I don't think मुझे झगड़ों से बचना है. बिकॉज बिग बॉस में आप जाने के लिए अग्री करोगे तो इट्स अ गिवन. मतलब आपको पता ही है आपको किसमें व्हाट यू आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन. सो झगड़े से बचना इज नॉट गोइंग टू बी माय क्राइटेरिया. सही चीज के लिए झगड़ना विल बी माय क्राइटेरिया. कि जो मैं सही समझता हूँ उसके लिए मैं कितना दूर तक जाने को रेडी हूँ. एंड आई थिंक अगर कोई जो मैं सही मानता हूँ अगर मैं उसके लिए लड़ा तो आई डोंट थिंक उसमें कोई मतलब मेरे फैमिली की डिग्निटी कम होगी. बिकॉज आई मीन टू फाइट फॉर व्हाट इज राइट मेक्स यू probably a better person, and there is no loss of dignity when you're fighting for the right thing. Right, true. Of course, when you're fighting for a wrong thing, I've not been raised that way. So if I'm wrong, I will definitely admit that I'm wrong, and I will break down and admit that हाँ मुझसे गलती हुई है. मगर अगर मैं सही हूँ तो मैं फिर अगर मेरा पॉइंट सही है या मेरा स्टैंड सही है तो उसके लिए मुझे जो करना है मैं करने को रेडी हूँ.
जैसे मैंने आपको पूछा था कि पेरेंट्स की तरफ से कोई डूज एंड डोंट्स हैं घर के अंदर, अब हाँ। आप जा रहे हो तो? वैसे तो बिग बॉस के लिए यू कांट प्रिपेयर अ गाइडलाइन मैनुअल एंड गो, हाँ, नो स्ट्रेटजीज वर्क देयर, इट्स एन एवर चेंजिंग गेम एंड आपको इन द गेम रह के you need to read the terrain and make your strategies and plans accordingly. But वैसे the only advice I've got from my father and my mom is that I should be myself. I shouldn't pretend to be someone that I'm not, because काफी बार ऐसा हो चुका है कि पहले हफ्ते में कंटेस्टेंट ने एक अपना एक रंग दिखाया है, बट दूसरे हफ्ते तक वो असली रंग निकल के आ जाता है, because that house does that to you. The situations do that to you कि आप कितना अपने आप को कितना एक्ट कर पाओगे. Ultimately the true color comes out. तो बेहतर यही होगा कि आप अपना ट्रू कलर लेके ही अंदर जाओ, ताकि आपको अपने आप को बदलना ना पड़े बार बार, and then you lose out audiences and people call you ऐसा fake और flip और जो भी ऐसा. So I think I would like to be myself from the beginning, so that जो भी है यही है and इससे ही आपको प्यार करना है. मतलब that's the mentality that I want to go in with, and that's what my mom and dad told me कि you be yourself. Because उस घर में ऐसे बहुत सिचुएशन आते हैं कि लोग अपने आपको बदल लेते हैं दिखाने के लिए कि मैं ऐसा नहीं या वैसा नहीं, जो हो वही रहो. That's what my mom and dad have told me, so I'm going to stick to that. And what was your dad's first reaction when you told him that ऐसा offer आया है मेरे पास and I'm planning to take up? What was his first reaction? He was shocked. He was very shocked because मैं घर में सबसे छोटा हूँ, हम 3 भाई हैं. And मैं always अपनी मॉम के साथ ही रहा हूँ बड़े होते होते, because my elder brothers, they went to my elder brother went to like the USA. He finished his masters from there, and मेरे second भाई ने अपना masters complete किया सिंगापुर से. So they are very very accustomed to staying alone. And away from family, away from the house and stuff. But मैं वैसा नहीं रहा हूँ, because मेरा field of work is different. So मुझे ऐसे बाहर रहने की जरूरत नहीं पड़ी to complete any course, और so मैं घर पे ही रहा हूँ अपने मॉम के साथ. तो my dad was he was a bit shocked. And first reaction was नहीं, like are you really want जाना है तुमको ऐसे, कहाँ जा रही हो, what kind of a atmosphere that place has. So he said नहीं मत जाओ. But after we spoke about it, मतलब हमने बातचीत की इस बारे में कि ऐसा है, and this full year has been a surprise for everybody. True. इस पूरे साल ने सबको मतलब हैरान परेशान कर रखा है. So we decided कि ऐसे टाइम पे बिग बॉस जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, it's very lucky for me, because इतने लोगों में लॉकडाउन के टाइम पर मुझे ये ऑफर मिला है. So I wouldn't get this opportunity again. Right. I felt. So we spoke about it. I spoke to Babai. I spoke to Ma. And finally, we decided that it's for the best. सबके interest, best of everybody's interest, and for me as well, because again, Big Boss is once in a lifetime opportunity. Like you don't get this chance again. So सोच विचार करके भी हम वही conclusion पे पहुंचते, तो हमने decide किया नहीं, we should go ahead with it, and देखते क्या होता है. And have you ever seen the previous seasons, and who has been your favorite contestant? I've seen, funnily enough, I've seen every season of Big Boss. Wow. मैं अपने मॉम के साथ हर सीजन देख चुका हूँ, right from season 1 till season 13, सब देखे. because पहले क्या होता था, खाने के टेबल पे बैठते हम, तो डिनर टेबल पे सब एक साथ बैठे, टीवी चल रहा है, एंड बिग बॉस चालू हो जाता था, एंड माय मॉम यूज्ड टू वॉच. तो मॉम के साथ मेरा भी हैबिट हो गया टू देखते हैं क्या होता है, ये वो. बाद में आई गॉट hooked onto the show, and I found it very interesting because
सिर्फ टीवी पे ऐसे ड्रामा नहीं चलता है उधर. बहुत कुछ चीजें हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही होती है वो घर में. तो मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा एंड विद टाइम आई बिकेम अ फैन ऑफ द शो. Regularly I used to watch, I used to wait for Big Boss का next season. Every season कुछ ना कुछ नया and और भी upgrade होते रहता था ये show. Every season has been better than the other. But the last season, I feel that in all of the 13 seasons of Big Boss, there has never been a contestant like Siddharth Shukla. Yes, I agree with you. I have been a fan of that man since the first episode, just for one reason, and that is वो अपना stand उन्होंने बदला नहीं. Big Boss में क्या होता है, for people to play the game आपको कभी-कभी दो मुहा बनना पड़ता है, या सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी बात को वर्ड्स को अपने वर्ड्स को भी पलटना पड़ता है और अपने साइड्स को भी स्विच करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गेम. बट दिस पर्सन, इन्होंने कभी किसी का कुछ उल्टा नहीं बोला किसी को. ये बात पीठ पीछे जाकर उसको करना, जो बहुत होता है ये गेम में. दैट इज द रीजन दैट आई फील सिद्धार्थ शुक्ला वन, बिकॉज ही स्टेड ट्रू टू हिमसेल्फ फ्रॉम द बिगिनिंग. मतलब उन्होंने यही ठान के कहते कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं. अब पसंद आए तो आए और नहीं आए तो फिर आपकी मुसीबत, फिर मैं क्या कर सकता हूँ. आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ फॉर एनीबॉडी. एंड आई फील दैट वो कारण से सिद्धार्थ शुक्ला इज बाय फार इन ऑल द 13 seasons that I've seen Big Boss, I feel that he is my favorite contestant. Just because उन्होंने कुछ बनावट दिखावा ये सब, एंड आई फील मैं उनके जैसा थोड़ा बहुत बिकॉज मुझे भी ये मेरी मॉम भी मुझे काफी बार, मेरी मॉम ने मुझे ये सब चीजों पे डांटा है. मैं बहुत लोगों से डांट खा चुका हूँ सच बोलने के लिए, क्योंकि मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसे चुप रहना है, मतलब ये बात यहाँ पे नहीं करनी है. मैं जाके आई यूज्ड टू से तो अभी बोल दिया तो बोल दिया, अभी क्या कर सकते हैं. एंड माय मॉम यूज्ड टू टेल मी कि यू शुड बी अ बिट यू शुड सी वे, और सोच समझ कर बात करना चाहिए. बट अगेन मतलब वही है कि ये पीठ पीछे बात करना एंड सामने कुछ पीछे कुछ प्रिटेंस करना, एक्ट करना किसी के सामने, ये मेरे से होता ही नहीं है. एंड ये मेरे अगेंस्ट जा चुका है बहुत बार. लेकिन अगेन वही है कि अल्टीमेटली जो सही होना था वो सही हुआ है. राइट. सो आई फील दैट सिद्धार्थ शुक्ला इज बाय फार माय फेवरेट कंटेस्टेंट एवर. राइट. एंड जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिग बॉस, जैसे आपने अभी कहा कि कभी आप घर से दूर नहीं रहे हो, आपके भाई कहीं ना कहीं accustomed हो गए हैं कि फैमिली के बगैर रहना, अपने आप को संभालना है ना. So how comfortable are you going inside the house, taking care of yourself, and also घर का काम खुद करना होता है यहाँ पर, चाहे वो खाना बनाने से लेके चॉपिंग, क्लीनिंग से लेके वॉशिंग तक. So taking मैं just because I've stayed at home, ऐसा नहीं है कि I don't know how to take care of myself. ऐसे बहुत दिन हुए हैं, and ये मैं आपको बहुत मतलब honestly बता रहा हूँ, ऐसे बहुत दिन हुए हैं कि मॉम इज नॉट वेल, माँ इज नॉट वेल, माँ को बुखार आ गया है, ऐसा कुछ हुआ है. एंड घर में डोमेस्टिक हेल्प नहीं है. मैंने और मेरे ब्रदर ने झाड़ू पोछा भी कर लिया है. हमको वी नो हाउ टू डू दैट ऑल्सो, बिकॉज हमको वी बीन रेज्ड ओनली लाइक दैट कि ऐसा कभी सिचुएशन आए कि आपको खुद का ख्याल रखना पड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ आ रहा ही नहीं है एंड यू आर जस्ट हेल्पलेस कि मुझे कुछ नहीं आता. एंड ये मेरी मॉम ने कभी, मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है, मेरी मॉम ने हम लोग को बचपन से ही सब चीजों की सब चीजों में, सब सिचुएशंस में हम रहे हैं, कहीं ना कहीं रहे हैं. एंड जो खाना बनाने की बात आपने की, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ. मैं घर पे भी खाना बनाता हूँ बहुत, एंड मैं बेक भी करता हूँ.
I make a lot of cakes, I make desserts, I make food, I make a lot of things. तो खाना बनाने का भी मुझे बिल्कुल, इनफैक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेकिंग कुकिंग फूड ऑन बिग बॉस. ओके. बिकॉज मैंने देखा है कि किचन की जगह पर सबसे ज्यादा मजा आता है लोगों को. हाँ. सबसे ज्यादा कहानियां उधर ही पकती है. हाँ. खाने के साथ. और जो किचन पे सबसे पहले कब्जा जमाता है वो लास्ट तक जाता भी है. ओके, ये एक अच्छा टिप दे दिया आपने मुझे. मैं अभी किचन पहले ही जाके पकड़, गौहर खान, शिल्पा शेट्टी. बट सिड वाज़न्ट लाइक दैट. आई थिंक सिद्धार्थ ने तो किचन में, हाँ, बट उनके घर के काम को लेकर ही तो काफी बखेड़ा होता था ना, बिकॉज ही नेवर डिड एनीथिंग. ऐसे लोग बोलते थे. So या always in the news for being the कामचोर. बट अगेन वही है ना कि वो कामचोर थे तो एकदम सीना तान के काम चोरी करते थे. हाँ. ऐसा नहीं कि वो पीठ पीछे काम चोरी करते थे, वो ओपनली काम चोरी करते थे. जो है वो है. So, और उनके फ्रेंड्स भी उनके बिहाफ में कवर अप करते थे. They were ready to do his work. चाहे वो सना हो, चाहे पारस. That's the beauty I feel of Siddharth Shukla's game. That he was so brutally honest that people were ready to do things for him and they didn't feel bad about it because he was the person like that. Right. So I think मतलब वही है. मुझे भी काम से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे देखिए, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, झाड़ू कटका हो, कुछ भी हो, मैंने सब कर लिया. मतलब मैं सब कर चुका हूँ एक ना एक टाइम पे. I've done it and I'm not afraid to say it also because again people have this perception कि ये घर से है and ऐसा है, but नहीं. I'm very normal. I've had a very normal upbringing and I'm very proud of it. I've had a very grounded upbringing and खाना बनाना, घर के काम करना, I'm up for it. Also, now that you are going inside the house और आप अकेले रहने वाले हो, मतलब फैमिली के बगैर and all, I want to know कि एक तरीके से आपके लिए एक ये जिंदगी का एक नया मोड भी है, because now people will get to know you as how you are in real life. कहीं ना कहीं आपने अब तक जो भी काम किया होगा वो your कहीं ना कहीं उसमें आपके फादर का इन्फ्लुएंस रहा होगा. लोग आपको उनके नाम से जानते हैं. अब जब आप अंदर जाओगे तो you will be judged on what you are doing inside the house, how you're presenting yourself in the house. So do you consider this as a very good opportunity? First thing, I might have got my father's name. हाँ. I have my father's name. It's a very big name, I know. But whatever I've achieved till now has been solely on my own merit and my mother's merit. Because having such a legendary background has its merits also and it has its demerits also. मतलब इसके बहुत positives भी है and इसके बहुत negatives भी है. And मैंने जितने भी अब तक स्मॉल अचीवमेंट्स मेरे रहे हैं वो इसी कारण से, ये व्हाट यू सेड राइट नाउ, दैट पीपल नो मी एज कुमार शानू's son, which is absolutely right and true, but people also mistake sometimes that अच्छा ये इनको काम मिला है तो because he is कुमार शानू's son. This perception I want to change because not only me, but my mom and my dad have been believers in getting what you want by your own merit. My father never had a godfather in the industry. He has come with my mom from Calcutta with no money in their pockets, very hard time, and then he's gone on to become this legend. Right. So उनका भी यही बिलीफ है कि जो अचीव करना है खुद के दम पे करो. खुद को गेज करो कितने खुद पानी में खड़े हो. एंड माय मॉम हैज बीन अ स्टाउट बिलीवर ऑफ दैट थ्रू आउट, वेदर इट बी सिंगिंग, वेदर इट बी एनीथिंग. चाहे वो पढ़ाई भी, एग्जाम भी, कुछ क्यों ना हो, मतलब वही है कि खुद के दम पे करो, तब पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड एंड तुमको कितना हार्डवर्क करना है. और भी
You know, मैंने किस सेंस में बोला अभी जो कि मैंने इस सेंस में बोला कि now that people, common people who will be seeing you for the first time on television, उनके लिए पहले तो जब आप एंटर करोगे तब आप पहले दिन कुमार सानू के बेटे होंगे, लेकिन सेकंड डे से you will be judged on your merits, कि आप किस तरीके के इंसान हो, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो. उस दिन से एक्चुअली आपका टेस्टिंग टाइम शुरू होगा. मेरे बिग बॉस में जाने का मकसद is this, ma'am. I want to show people that I'm not just Kumar Sanu's son. यही जो बात आपने करी है, मैं इसी कारण से बिग बॉस में आना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को यही दिखाना है कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग कुमार सानू, मिस्टर कुमार सानू सन, आई एम जान कुमार सानू. मुझ में और बहुत क्वालिटीज है जो मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, so that I can create my own identity on the show and in this world, of course. So मेरा aim to go into Big Boss is exactly this. Right. And I actually, मतलब apart from being afraid, मतलब इससे डरने के बजाय I am actually looking forward to it. क्योंकि मुझे यही दिखाना है लोगों को कि मैं as an individual कैसा हूँ. Right. और you know, जब घर में आप जाते हो तो काफी बार ऐसा भी होता है कि न्यू कनेक्शंस बनते हैं. There are times, you know, when क्योंकि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में होते हो कि आपकी नई दोस्ती होती है, and there are times when you actually you know meet new people और फिर आप अट्रैक्ट भी हो जाते हो. बिग बॉस के घर में तो काफी देखने के लिए मिला है, लव स्टोरीज काफी सारी बनी है. तो आर यू ओपन टू इट? Do you think reality show is a good platform to find true love? Yeah, love. I don't think reality shows is a good platform to find love, because I have a few reasons for it. Firstly, 3 महीने में किसी से प्यार हो जाना, मैं नहीं मानता ये हो सकता है. Because when it comes to this love, dating and all, मैं थोड़ा old school हूँ. मतलब I've learned it from my mom कि 3 महीने में प्यार हो जाना, I don't think ऐसा हो सकता है, you know. And secondly, कहाँ पर हम हैं उस जगह को नाप कर भी हमको चलना है. So प्यार मतलब फ्रेंडशिप एंड लाइक यू नो एवरीथिंग अपनी जगह, अल्टीमेटली वहां पर जो भी आ रहा है वो गेम खेलने के लिए आ रहा है. जी बिल्कुल. So based on that, अगर मैं बोलूं कि हाँ मुझे प्यार हो गया या ऐसा कुछ, that will be foolishness on my part. I feel this is my belief. And मेरी तरफ से friendship बिल्कुल, I will have to make, I'm looking forward to making a few good friends in Big Boss, definitely. But I don't think love मेरे लिए तो नहीं होगा, because थोड़े है हम old school type के, you know, when it comes to this matter of love and all. So 3 months में अगर मैं ऐसे जगह पे रहूं जहाँ पर सभी एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं to win the game, and मैं बोलूं कि मुझे प्यार हो गया है, so वो I don't think will be real. So मैं उस जगह जाना ही नहीं चाहूंगा. और ऐसे क्या चीज है जो आप you know, जैसे बिग बॉस के घर के अंदर रहते हैं तो आपको सारी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं, ऐसी कोई चीज है जो आप शायद पसंद ना करें किसी के साथ शेयर करना? I think my bed. बट वो तो शेयर करना होगा शायद इस बार कुछ अलग हो, बट यू नेवर नो. I hope social distancing के लिए मतलब you know might be काम में आ जाएगा, मेरे फेवर में आएगा. Exactly, because I don't like I'm not very okay, you know, with the bed sharing, because I like sleeping एकदम ऐसा खुल के, you know, and मतलब अपनी जगह में, and एक basically comfort होता है, right? So that's one thing that I wouldn't want to share with people. And हाँ, I think बाकी तो सब ठीक है, share कर लेंगे मतलब जब जरूरत पड़ी तो. Okay. Before wrapping up, tell me, you know, Salman Khan is show के host हैं. He has been, you know, hosting this season for 10 years now. ये 11th year होगा उनका जब वो host करेंगे. उनके hosting को लेकर भी काफी बार, you know, comments आते हैं जब कई
लोगों के फेवरेट कंटेस्टेंट को अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं कि ही इज बायस्ड एंड ऑल, बट ही हैज बीन डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब यू नो सिंस लास्ट 11 years. हाँ. Yeah. So what do you want to say and how excited are you meeting him? See, I've been a very big Salman Khan fan since childhood. And I feel that if Salman sir is the way he hosts, the way he carries the show, I feel that he makes very informed decisions. वो ऐसे हवे में किसी को नहीं बोल देते कि आपने ऐसा गलत कर दिया है या ऐसा कुछ. वो उनकी बातों से, मतलब जितना मैंने देखा है सलमान सर की बातों से ये लगता है कि जब भी वो किसी कंटेस्टेंट को बताएंगे कुछ, वो फुल उस कंटेस्टेंट का फुल रिसर्च करके, उसके फुल क्लिप्स देख के, एनालाइज करके फिर वो अपना मुंह खोलते हैं. Right. And not, I wouldn't say 99 also, 100% of the times he is absolutely right about that contestant. Because he does not talk about people without knowing what they've done in the show. And Salman sir knows exactly किन पॉइंट्स पे कंटेस्टेंट्स को बताना है कहाँ गलत जा रहे हो या क्या सही कर रहे हो. He doesn't tell the contestants just about कि आपने क्या गलत किया and all. जो सही करते तो सलमान सर उनको अप्रिशिएट भी करते कैमरा पे कि you took a good stand and I really like that about you ऐसे. So he says it. So one thing that I feel like if सलमान सर मुझे डांट दे कभी शो में, तो मुझे इसमें 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है तभी सलमान सर is shouting at me, because otherwise I've seen the way he behaves with all the contestants. It is superbly fun when he talks about talks to and about contestants and also unless and until मैंने कुछ बहुत ही गड़बड़ कर दिया वो मुझे क्यों डांटेंगे. Right. And मैं तो अंदर हूँ ना घर के, बाहर का तो उनको दिख रहा है, right? So वो बेवजह तो मुझे नहीं बोलेंगे कुछ. So I'll have to monitor that कि if Salman sir does shout, why is he shouting? What have I done wrong and what I have to correct? I will feel bad about it, absolutely, but then again it's about correcting myself more. So I'll look forward to that, in fact. Right. Lastly, before wrapping up, any message to fans who will be watching you in Bigg Boss 14? Messages to fans. Okay. So मेरा नाम है जान कुमार सानू. मैं बिग बॉस में आ रहा हूँ और मैं सिंगर हूँ एंड मुझे आप लोगों की वोट्स, प्यार, ब्लेसिंग्स बहुत 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 ज़रूरी है, बिकॉज आप लोगों ने मेरे डैड को भी बहुत बहुत प्यार दिया है. यू ऑल हैव गिवन माय फादर द स्टेटस ऑफ अ लेजेंड एंड आई विश दैट आप लोग मुझे वही प्यार और वही ब्लेसिंग्स इस शो के जरिए दे और आगे भी देते रहे. सो आई वुड लाइक टू अपील टू यू ऑल, प्लीज गिव मी अ लॉट ऑफ वोट्स एंड मैं आप लोगों को एंटरटेन करते रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा. एक क्वेश्चन रह गया मेरा कि आप जाने से पहले आपने नाम को लेकर काफी ज्यादा ट्विटर ट्रेंड वगैरह में आ गए हैं, गूगल पे भी लोग ट्रेंड कर रहे हैं, तो इट फील्स गुड कि जाने से पहले एटलीस्ट न्यूज में किसी ना किसी तरीके से तो हूँ. Absolutely feels good. मतलब and what better way than to become a source of laughter. And मतलब एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से एक्चुअली ये पूरा ये जो कारनामा हुआ है, बट मुझे तो बहुत मजा आया बिकॉज लोगों को हंसी आई एंड लोगों को पता चला कि मैं कौन हूँ. इसी जरिए से आई केम इनटू द पीपल्स आईज. सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड जिन्होंने वो मीम अपलोड किया मैंने उनसे बात भी की एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी. ही वाज सरप्राइज्ड कि ब्रो हाउ आर यू सच अ गुड स्पोर्ट, आपने गलत तरीके से नहीं लिया, आपने बहुत अच्छे से लिया. सो वी वर लाइक या हाँ ब्रो मजा आ गया, लाइक इट वाज अ गुड मीम, वायरल भी हो गया काफी एंड लाइक लोगों को पसंद भी आ गया. सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी कि जाने से पहले इतना बड़ा अच्छा स्प्रेड हो गया. हाँ, right, मेरे बारे में. या
Right. Thank you so much, and all the best for the show. Hope you Thank you. continue to stay so positive and honest throughout the show, throughout the 3 months, and you come out winning the show. Thank you so much. Thank you so much. Please do vote for me and give me your support. Sure. And you, I will try you please my best. entertain us inside. I will try my best to entertain you all. Actually, I won't try my best. I will entertain you all. Yeah. That's without doubt. जब तक आप entertain करोगे, तब तक आप हो. ये जान लो. Absolutely done.